بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی جیت کے حوالے سے۔ بہاولپور میں شہری پاکستان کی جیت پر نہال شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان نے اس دفعہ بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے اور اس دفعہ جو سیریز جیتے ہیں، ہماری جو پاکستان کی ٹیم سے توقعات پہلے ڈاؤن ہو چکی تھی وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے اپ ہو گئے ہیں۔ ہماری مورل سپورٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ محسن نقوی صاحب آئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بڑا اچھی چینجنگ لے کے آئے ہیں ٹیمز کے اندر، تو انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ۔ آگے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری پاکستانی ٹیم جو ہے اسی طرح سے ہمارا نام روشن کرے گی۔ مزہ آ گیا انشاءاللہ، جس طرح کے یہ محسن صاحب کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کنگ آف دا رنگ بنے ہیں اور انہوں نے اتنا مزہ کرایا ہے کہ انہوں نے جو چینجنگ لایا ہے نا، دل خوش ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے چینجنگ جس سے مزہ آتا ہے کہ بابی معاملات اچھے چل رہے ہیں اور اتنے دنوں بعد ایک اچھی اسپرٹ اور خوشی ملی ہے۔ محسن نقوی صاحب کنگ آف دا رنگ نکلے ہیں، ان کی میں نے ویلڈن گرین شرٹس ویلڈن پاکستان 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت گیا۔ آسٹریلیا سے میچ جیتنے پر ملتانیوں کا جوش و جذبہ اتنی۔ شائقین کا کہنا ہے کہ کئی سال بعد پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرایا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں سہیل طارق سے۔ بہت اچھے جذبات ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ اللہ پاک کی بہت مہربانی ہوئی کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک نے ترقی کی طرف گامزن کیے ہے اور ماشاءاللہ اچھے پلیئر نے مطلب بیٹنگ کی اور بولنگ بھی کی، تو اس کو دیکھنے کے بعد بہت دل خوش ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ اور بھی انشاءاللہ ہمت دیں گے، جذبہ دیں گے اور ہمارے تو بہت دل پر جوش، مطلب ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ مزید اللہ پاک ہمارے جو بھی بیٹسمین ہیں، کھلاڑی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو مزید آگے کام مطلب کرنے کی توفیق دے اور اچھا جذبات رکھنے کی توفیق دے۔ جی بابر اعظم کا میں خود بیسیکلی بہت بڑا فین ہوں، تو جس طرح سے اس نے چھکے چوکے لگائے ہیں اور پاکستان کو جتایا ہے، تو امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی نا یہ پاکستان کا نام روشن ہوگا اور نہ پاکستان جو میچ میں کامیابی حاصل کرے گا، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو۔ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے پاکستان کے جیتنے کی۔ اللہ پاک کا شکر اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے ہماری ٹیم کو۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ایسی ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بات کریں گے بڑھتے اسموک کے حوالے سے۔ ملتان اسموک کی لپیٹ میں۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 461 پوائنٹ ریکارڈ، شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر۔ اس پر مزید بات کریں گے، وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل علی، اگر بات کرتے چلیں شہر ملتان کی، تو ملتان کا آج تیسرا روز ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بری طریقے سے متاثر ہے۔ 2 روز قبل کی بات کرتا چلوں تو ملتان دنیا کا پہلا نمبر اور کل پاکستان کا پہلا نمبر، اور آج بھی ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس حد تک متاثر ہے کہ یہاں پر سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کیوں نہیں کیے گئے۔ اور اس تمام تر صورتحال کی اگر میں بات کرتا چلوں تو شہر میں سانس لینا اس حد تک متاثر ہے کہ جو دمے کے اور استھمے کے مریض ہیں ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جو دعوے کیے تھے پہلے سے ہی کہ ہم اسموک کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ادا کرتے رہیں گے، لیکن وہ کہاں کردار ہیں کہ جو ملتان میں یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے تو ضلع انتظامیہ کی وہ پہلے سے کی گئی میٹنگز جو ہیں ان کا کیا فائدہ ہوا، کیونکہ ملتان اس وقت جو ہے وہ شدید ترین بری صورتحال فضائی آلودگی کے حوالے سے موجود ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر میں کمشنر ملتان وسیم حامد اور ڈی سی ملتان وسیم حامد اور کمشنر جو ہے وہ مریم کی بات کرتا چلوں تو مختلف جگہ پر میٹنگز جو ہیں وہ بھی جاری رہی، اور ان میٹنگز کے اندر اس بات کو باور کرایا گیا کہ اسموک کے تدارک کے لیے ہم چمنیوں کو بھی بند کریں گے، بھٹوں کو بھی بند کریں گے اور ٹریفک کو بھی بند کریں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا۔ گزشتہ 2 روز سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی شہر ملتان میں جاری ہے۔ نہ صرف شہر ملتان، ساؤتھ پنجاب کی یہی صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں چمنیوں کا دھواں ابھی بھی نکل رہا ہے، بھٹے ابھی بھی چل رہے ہیں، تو ضلع انتظامیہ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے، اور شہری جو ہے وہ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انتظامیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ اور انتظامیہ کا جب موقف لینے کی کوشش کی گئی تو ان کے اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ہم اسموک کے تدارک کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کردار صرف بند کمروں کی حد تک ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ملتان کی انتظامیہ مکمل طور پر جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لی ہیں انتظامیہ نے کہ ملتان میں اسموک کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی ہمیں انتظامیہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن شہریوں کی زندگی وہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شہریوں
शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। माहौल को खुशगवार रखना, माहौल के अंदर इस स्मोक का तदारुक करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट में पॉलिसी मेकर अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर तो बंद कमरों के अंदर इस वक्त शहर मुल्तान के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से शहर में सांस लेना महाल हो चुका है। आंखों के अंदर जो है वो आपको महसूस होता है और चुभन पैदा हो रही है। बार बार लोग अपनी आंखों में पानी जो है वो डाल रहे हैं। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों तक महसूस रहें। और मोटरवे M5 की बात करते चलूं तो इस वक्त वो भी हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है पिंडी भटियां तक। और M4 की बात करते चलें तो M4 जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जहां पर मोटरवे बंद है वहीं पर पूरे शहर का बुरी सूरत हाल है। धुआं बारबेक्यू का निकल रहा है, ट्रैफिक जो है वो जा बजा नजर आ रही है। स्मार्ट लॉकडाउन में स्कूल्स को बंद किया गया तो हमने देखा कि तफरीगाहों में शहरियों का बहुत ज्यादा रश जो है वो बढ़ गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। मुल्तान के ब्रांड रोड, गुलगश्त, गुलशन मार्केट या इसके अलावा मैं हुसैनगंज मार्केट की बात करता चलूं तो वो भी इस वक्त जो है वो खुली हुई है। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर बात करते चलें शहर मुल्तान की, तो मुल्तान इस वक्त शदीद तरीन स्मोक की लपेट में है, जो कि जिली इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ये बात करेंगे स्मोक बारे रोही की खबर पर एक्शन। हुकूमती महकमे मुतहरिक कादिरपुरा में खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन शुरू। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे मालिकान और फसलों की बाकियात को जलाने पर 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। फसाई आलूदगी फैलाने वाली एक फैक्ट्री भी सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए इकदाम जारी हैं। स्मोक बारे रोही की खबर पर एक्शन। हुकूमती महकमे मुतहरिक कादिरपुरा में खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन शुरू। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे मालिकान और फसलों की बाकियात को जलाने पर 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। फजाई आलूदगी फैलाने वाले एक फैक्ट्री भी सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए इकदाम जारी हैं। जनूबी पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन, हद निगाह मुतासिर, सांस लेना भी महाल। शहरी घरों में रहने पर मजबूर। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा फजाई आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के डेरे। फजाई आलूदगी में मुल्तान पाकिस्तान भर में दूसरा नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248, खानेवाल 256, डीजी खान 226, लिया 240, बहावलपुर 241, सरगोदा 243, राजनपुर 195, रहीम यार खान 184 और मियां वाली का 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक बढ़ने पर मोटरवे हुकाम ने M4 मोटरवे को बंद कर दिया था। रात 11 बजे से इधर आए हैं, तब के ही खड़े हैं। स्मोक बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम अपना सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल हो रही है। उस वक्त जो है बहुत शदीद फॉग हुआ है इस वक्त, और इस वक्त जो है ना सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मेरी वाइफ भी बैठी हुई है, उनको भी अभी पंप करवाया है मैंने। दमे का मामला बच्चे का भी है, तो बहुत सीरियस मैटर है। भट्टे, नकारा गाड़ियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं मुल्तान की फिजा को आलूदा करने लगा। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाना भी इसकी वजह है। कानूनी इदारे फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम हैं। मोटरवे बंद होने से शहरियों को सफर करने में दुश्वारी का सामना रहा। हम लोग कराची से टूर पे आए थे, अभी वापसी पे जाते हुए मुल्तान में और लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप लोग मास्क पहने और बाकी चीज़ अपना आंखों को बचाएं, मास्क पहने, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हुकूमत पंजाब हंगामी बुनियाद पर मसनूई बारिश का एहतमाम करे। इसके साथ स्मोक पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं तो स्मोक की शिद्दत में मजीद कमी हो सकेगी। कैमरामैन नशद गुजर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। महंगाई को कंट्रोल करने के दावे महज बातें। हासिलपुर में घी दालों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तकरीबन एक माह में 150 रुपए किलो तकरीबन घी के रेट बढ़े। इसी तरह दालें हैं 100-150 रुपए। दाल चना तकरीबन 150 रुपए किलो बढ़ी है। इसी तरह काले चने 130 रुपए किलो बढ़े। दाल माश तकरीबन 150 रुपए किलो बढ़ी है। तमाम करियाना की जो खुर्दोनोश वाली चीज़ें जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनका बजट भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है, बहुत परेशान है। और हम भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, मुनाफा कम होता जा रहा है। 400 रुपए लिया था, 500 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो। अब कहाँ जाए, गरीब आदमी है, ले ही नहीं सकते। अब क्या करें। अब
मौसम सरमा का आगाज होते ही गैस नायाब। तरंडा मोहम्मद पनाह में गैस की लोड शेडिंग अरूज पर। गैस न होने के बायस खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा। चंद हफ्ते पहले 800 में फरोख्त होने वाली लकड़ी 1000-1200 रुपए फी मन होगी। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरी महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। गैस न होने के बाद खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। लकड़ी की मांग में इजाफा होने से कीमत भी बढ़ गई। खुश्क लकड़ियां खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। शहरी कहते हैं चंद हफ्ते कबल 800 रुपए में फरोख्त होने वाली लकड़ी का रेट 1000 से 1200 रुपए मन तक पहुँच गया है। गैस की लोड शेडिंग के बाद महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर है। गैस उदमदी का नहीं बालें को पढ़ाने के लिए बड़ा मसला है। बिल आवे गैस आमदा ही कहनी वाली बिल है 1000 तो 1200 रुपए लकड़ गई खड़ी है। सारी महंगाई जरा ना हालात है इनका ना कम दे हालात कह रही तो महंगाई रोज है। शहरियों का मजीद कहना था कि एलपीजी और खुश्क लकड़ियां खरीदना पहुंच में नहीं रहा। महंगाई की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। हाल सर्दी दी आमद पूरी तरह सर्दी आई कहनी गैस की लोड शेडिंग शुरू की है। सवेरे नाश्ते टाइम को गैस कहनी होंगी, शाम के टाइम को रोटी पकाने के टाइम को भी गैस कहनी होंगी। मजबूर थे से सिलेंडर गैस भरवाने वास्ते वो तकरीबन आम रूटीन को 70 रुपए रेट बढ़िया खड़े है। मुझे को बस आम लकड़ी ना लकड़ पहले 800 रुपए मानी हो 1000 रुपए मान असा गिनते करते। हुकूमत को सारी अपील है कि गैस भी टाइम से दे एलपीजी का रेट भी कंट्रोल करे। शहर में सुबह और शाम के औकात में गैस लोड शेडिंग जारी है। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से गैस लोड शेडिंग खत्म और महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। 9वीं थल जीप रैली के आखिरी रोज आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स जीप रैली का हिस्सा साहबजादा सुल्तान का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू है और टाइम से तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट्स हम टाइम हमारा ऊपर हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम रेस शुरू नहीं कर सके और कोशिश तो सबकी यही थी कि आज के जो दिन है, आज का जो फाइनल है, इसमें भरपूर शिरकत हो, एक जबरदस्त मुकाबला हो। लेकिन चूंकि स्मोक इतनी ज्यादा है कि अभी तक हम मुमकिन नहीं बना सके कि रेस शुरू करें। नए आने वाले रेसर्स तो मैं यही कहूंगा कि ये खेल है, इसको खेल की तरह लेना चाहिए और सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है, फिर आपकी जो स्पेक्टेटर्स सामने खड़े हैं देखने वाले उनकी सेफ्टी है। लेकिन जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसके मुताबिक गाड़ी चलाएं। तो 2 साल 3 साल जब आप चलाएंगे आपका हाथ बैठ जाएगा तो उसके बाद आप पूरा पुश कर सकते हैं। तो बड़े अच्छी खुशाइन चीज है कि नए लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां बना के आ रहे हैं, खेल के लिए बहुत अच्छा। मुल्तान में फ्लड एंटी सेपरेटी एक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से एक रोजा सेशन का इनकाद आगाही फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम। सेशन में पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल परवेज चौधरी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मुल्तान में आगाही फाउंडेशन और स्टार नेटवर्क के ताउन से एक रोजा लेसन लर्न वर्कशॉप का इनकाद किया गया। ये वर्कशॉप फ्लड एंटीसिपेटरी एक्शन प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर मुनक्किद की गई, जिसका मकसद सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स के तजर्बात का तबादला करना था। वर्कशॉप में पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल परवेज चौधरी, डायरेक्टर PDM में साउथ, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इकबाल सहू, CEO आगाही मुबारक अली सरवर समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। पहली मर्तबा पंजाब में किसी गवर्नमेंट ने पंजाब क्लाइमेट पॉलिसी का देना, स्मोक मिटिगेशन प्लान देना। इवन कि क्या होता था जब स्मोक आती थी दौड़ें लग जाती थी और कोई हासिल नहीं होता था। पहले से तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है और स्मोक मिटिगेशन पे काम किया गया है। हम स्टबल बर्निंग को देख रहे हैं, हम फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं एमिशन को चेक किया जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को चेक किया गया है, शॉपिंग बैग कैंपेन चल रही है। जो भट्टे जिगजैग पे नहीं हैं उन्हें की वायलेशन पे उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। CEO आगाही मुबारक अली सरवर ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। आगाही के डॉक्टर अब्दुल्ला अवैस ने फ्लड एंटी सेप्टी एक्शन प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें राशन तकसीम और सफाई के हवाले से इकदाम शामिल थे। जो फ्लड अफेक्टेड लोग थे उनको हमने फूड हैम्पर्स दिए, हाइजीन किट्स दी और हमने उसके अलावा जेरी कैंस दिए। इसके अलावा हमने अवेयरनेस सेशंस जो है वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हमने सेशंस किए कि किस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म के जो आफात हैं, कुदरती आफात बखसूस सैलाब से वो कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। हमारे भाई हैं जो फ्लडेड एरियाज में रिहाइश पजीर होते हैं और उनके लिए काम करना एक एजाज़ की बात है।
आगाही फाउंडेशन ने जो वर्क किया है या वर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक एजाज़ की बात है कि जो वहाँ पे हमारे लोग मुतसरीन हैं उन तक पहुँचते हैं और उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं। इख्तितामी कलमात में पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल परवेज चौधरी ने आगाही की काविशों को सराहा और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात पर रोशनी डाली। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरा में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन जैन कुरैशी के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 711वां सालाना उर्स इख्तिताम पजीर। उर्स के तीसरे और आखिरी रोज साहबजादा जैन कुरैशी ने इख्तितामी दुआ कर बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम सोहरवर्दी का सालाना उर्स मुबारक। उर्स के तीसरे रोज कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त सजाई गई। मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर सुहेब कुदूस का कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि औलिया अल्लाह की दरगाहों पर लोग उम्मीद के साथ आते हैं, यहाँ रूहानी सुकून मिलता है। औलिया अल्लाह ने बरसगीर में इस्लाम फैलाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अंबिया और रसूलों को भेजा। अंबिया और रसूल आकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपने बंदों का ताल्लुक मिलाते हैं और इन बुजुर्गान दीन ने अपने मुरीदैन से और अपने मुतकद्दीन से और अपने साथ चलने वालों को अल्लाह उसके रसूल से मिलवाया। उर्स की इख्तितामी दुआ साहिबजादा जैन कुरैशी ने करवाई। कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की सदारत साहिबजादा जैन कुरैशी ने की। सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अलामा फारूक खान सईदी, रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, अदनान डोगर, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर, साबिक MPA महेंद्र पाल सिंह, मियां जमील अहमद, सजाद हुसैन कुरैशी और डॉक्टर सिद्दीक कादरी समेत ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।